Hello students, this is Priyanka Vasuroy from Xavier's International School. I am your science teacher and we will start with the first lesson of our class 8 science, that is crop production and management. So सबसे पहले when we are talking about crop production and management, we are talking about crops. Crops यानी वो चीज़ें जिन्हें हम ग्रो करते हैं फॉर द कमर्शियल पर्पसेस. सो बेसिकली एग्रीकल्चर में जो चीज़ें हम ग्रो करते हैं वो सारी हमारी क्रॉप के अंडर आती हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स एंड ऑल, ये टाइप की चीज़ें क्रॉप्स में आती हैं. हाउ वी प्रोड्यूस देम, हाउ वी ग्रो देम एंड हाउ वी मैनेज देम, ये सारा हमारे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में आता है. So the topic we are discussing first here is agriculture. The word agriculture comes from the Latin word ager, means field, and cultura means care. So the agriculture is growing of plants or raising of animals for human use. This is the current term that is used. So what we do is we grow plants in huge fields, we grow plants in large fields for agriculture, and then the portion which deals with the animals is animal husbandry, in which we grow in which we take care of our animals and we take some sort of benefit from them. So here you are given some terms. The first one is crops. Plants of the same type grown and cultivated in one place in large quantities in a field are known as crops. अगर कभी भी हम एक ही टाइप के plants grow करते हैं किसी एरिया में, किसी बड़े फील्ड में, उन्हें कल्टीवेट करते हैं, ग्रो करते हैं, then those are known as crops. For example, crops of rice. In a crop of rice, we are taking a huge field and we are growing rice specifically in that field. Then it will be the crop. See, the product of cultivated crop is known as crop produce. Whenever we grow the plant in a field, we cultivate them for commercial purposes, then those are known as crop produce. Crop produce से क्या products मिलते हैं इस पे depend करके crops are of different types. Like we have cereals, we have pulses, we have oil crops. Here you are given some pictures as an example. So with cereal crops what we do is कि हमें जो cereals होते हैं उस टाइप के crops हमारे cereal crops के अंदर आते हैं. जो हमारे pulses होते हैं यानी हमारी दाल वगैरह होती हैं या चने वगैरह होते हैं, here you are given an example of chickpea. So these come under our pulses crop. Then oil crop, the plants which provide us with oil. For example, we have sunflower, which gives us mustard oil. तो जहाँ से भी oil मिलता है हमें उन crops को oil crops कहा जाता है. And the fourth one we have are fiber crops, यानी जिनसे हमें fiber मिलता है. For example, cotton. The next word here you are given is horticulture. Horticulture is derived from two Latin words that are hortus, which means garden, and culture means care. So horticulture is the specific part of science that deals with the growing and production of vegetables, fruits, flowers and ornamental plants. यानी जो flowers या ऐसे plants होते हैं जो सजावट के लिए यूज होते हैं, aesthetic purposes के लिए यूज होते हैं, इन टाइप की चीज़ें, द ग्रोइंग एंड प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें जो है दे कम अंडर द वर्ड हॉर्टिकल्चर. So there are two terms which we have discussed. The first one is agriculture and the second one is horticulture. Next we are discussing about the crop seasons in India. India की अगर हम बात करें then we have two types of crop seasons. The first one is kharif crops from June to October and the second types are rabi crops which are from October to April. यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं व्हेन यू टॉक अबाउट खरीफ क्रॉप्स जो हैं वो रेनी सीजन में आते हैं, रेनी सीजन में किए जाते हैं. दे आर स्टार्टेड इन जून एंड हार्वेस्टेड अराउंड अक्टूबर. पैडी हो गया, अरहर की दाल हो गई, मेज हो गया, मेज इज मक्की, कॉटन, सोयाबीन, पीनट्स, ये सारे के सारे खरीफ क्रॉप्स में आते हैं. तो ये खरीफ क्रॉप्स के सीजन में ग्रो किए जाते हैं. The second ones that we have are rabi crops. These are sown in winter season and winter season में usually ये अक्टूबर से लेकर अप्रैल अराउंड तक ग्रो किए जाते हैं. इसमें हमारे वीट आ जाता है, ग्राम, पीज, मस्टर्ड, बार्ले, ये सारी चीज़ें हमारे रबी क्रॉप्स में आ जाती हैं. So with the help of the seasonal difference we have two different crop seasons in India.
The next we are talking about is agricultural practices. Whenever we talk about agriculture में agriculture एक scientific procedure है. Agriculture में हम बड़े बड़े fields में हमारी crops को grow कर रहे हैं. तो अच्छी crops मिलने के लिए, अच्छी yield मिलने के लिए we have to follow some agricultural practices. हमें कुछ techniques follow करनी पड़ती हैं, हमें एक order follow करना पड़ता है जिससे हमारी crops की quantity, quality वो सारी improve होती है. तो आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कैसे दिए गए हैं. द फर्स्ट वन दैट वी आर सीइंग हियर इज सॉइल प्रिपरेशन. द सेकंड वन वी आर सीइंग इज मैन्योरिंग और एडिंग फर्टिलाइजर्स. द थर्ड वन the second one is selection and sowing of seeds. I'm sorry. The third one is manuring or adding fertilizers. The fourth one is irrigation. The fifth one is weeding. The sixth is harvesting. The seventh is threshing or winnowing. And the eighth is storage. So इन्हें हम डिटेल में एक एक करके डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट वन दैट वी आर डिस्कसिंग इज सॉइल प्रिपरेशन. जब भी हम किसी एरिया में, जब भी हम किसी फील्ड में क्रॉप्स ग्रो करें, द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज वी हैव टू प्रिपेयर द सॉइल फॉर द क्रॉप्स. वी हैव टू प्रिपेयर द सॉइल फॉर कल्टिवेशन. इसमें हमारे मेनली टू टाइप के स्टेप्स आते हैं, विच इज प्लाउइंग और टिलिंग, एंड द सेकेंड वन इज लेवलिंग. प्लाउइंग में हम क्या करते हैं, ऊपर की जो फर्टाइल लेयर होती है विच यू नो एज द टॉप सॉइल, उसको हम थोड़ा लूज कर देते हैं, उसे थोड़ा उल्टा पुल्टा देते हैं. ठीक है, इससे अगर वो ड्राई है तो उसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं ताकि वो और पानी होल्ड कर सके और एयर होल्ड कर सके, एंड वहाँ पे हम क्रॉप्स अच्छे से लगा सकें. दिस इज नोन एज प्लाउइंग. आपको यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई हैं कि प्लाउइंग कैसे करते हैं. इफ़ यू सी अराउंड इन योर एनवायरनमेंट, जहाँ पे आपने आसपास खेत देखे होंगे या आपकी फैमिली के पास खेत होंगे जहाँ पे आपने ये चीज़ देखी होगी. बट बेसिकली उस सॉइल को जोत देते हैं, जैसे हल से जोतना या किसी गाय वगैरह, किसी बैल वगैरह से जोतना या फिर ट्रैक्टर्स के थ्रू जोतना. सो दैट इज नोन एज प्लाउइंग. प्लाउइंग के इंपॉर्टेंस आपको दी हुई है कुछ पॉइंट्स. द फर्स्ट वन इज इट हेल्प्स इन लूजनिंग द सॉइल. सॉइल को लूज करने का काम करता है. सॉइल और ज़्यादा हवा होल्ड कर सकती है और ज़्यादा पानी होल्ड कर सकती है ताकि वो क्रॉप्स को दे सके. द सेकेंड थिंग इट डज इज इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स. अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स अगर सॉइल में ग्रो करते हैं तो वो सॉइल्स को और ज़्यादा न्यूट्रिशनिंग बनाते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं, ह्यूमस की क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं, एंड इससे हमारी प्लांट्स की ग्रोथ और भी ज़्यादा अच्छी होती है. The third one is that it's easy to mix fertilizers and manures in the loose soil. जब भी हम कोई भी फर्टिलाइजर्स दे रहे हैं, मैन्योर दे रहे हैं प्लांट को अच्छे से ग्रो करवाने के लिए, तो अगर हमारी सॉइल जो है वो बहुत टाइटली पैक्ड है तो उसमें वो मैन्योर वगैरह अच्छे से अंदर नहीं जा सकता. सो व्हेन योर सॉइल इज लूज इट इज ईजियर टू मिक्स द फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स. द फोर्थ वन इज दैट इट हेल्प्स इन रिमूविंग द वीड्स बाय uprooting them. Weeds are the type of plants which are harmful for the crop that we are growing. जो हम ग्रो नहीं करते, जो खुद ब खुद वहाँ पे ग्रो करते हैं. तो अगर हम सॉइल को इस तरह से प्लाउ करते हैं, प्लाउइंग करते हैं, तो जो वीड्स हैं वो वहाँ से उखड़ जाते हैं एंड वो हमारे जो एरिया है, जो हमारा फील्ड है वो और भी क्लीन हो जाता है फॉर आवर क्रॉप प्रोडक्शन. The next point is that loose soil allows growth of roots into the soil for firm binding. अगर मिट्टी थोड़ी सी लूज होगी तो वहाँ पे जो प्लांट्स हम लगा रहे हैं वो और भी अच्छे से रूट्स बना सकेंगे एंड और भी टाइटली वहाँ से जुड़ सकेंगे. The last point is that soil contains minerals, water, air and some living organisms. तो अगर हम उसे अच्छे से प्लाउ करते हैं तो जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वहाँ पे वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. They are more easily absorbed by the plants that we are growing in that area. The second one is leveling. लेवलिंग करने के लिए क्या होता है, प्लाउइंग करने के बाद भी कई बार बहुत बड़े बड़े पीसेस वहाँ पे मिट्टी के रह जाते हैं एंड दे आर क्रश्ड यूजिंग वुडन और आयरन प्लैंक्स. लेवल करना मतलब किसी चीज़ को बराबर करना वहाँ पे, ठीक है, स्मूदन आउट करना. तो अगर हम बड़े बड़े वुड या आयरन प्लैंक्स से उस मिट्टी के जो बड़े बड़े पीसेस हैं उन्हें अगर हम क्रश कर दें ताकि वो बिल्कुल बारीक हो जाएं और एक प्रॉपर बैलेंस में आ जाएं, स्मूथ आउट हो जाए वो फील्ड, देन दैट इज नोन एज लेवलिंग. लेवलिंग क्या करता है, नंबर वन, इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ मॉइस्चर. अगर बड़े बड़े पीसेज हैं और बहुत ज़्यादा गैप है तो जो पानी सॉइल में प्रेजेंट है वो इवेपोरेट हो सकता है. तो ये मॉइस्चर लॉस से प्रोटेक्ट करने के लिए लेवलिंग काम आता है. सेकेंड थिंग इज लेवलिंग अलाउज द सॉइल टू सेटल सो दैट इट इज नॉट इरोडेड बाय विंड और वाटर. लेवलिंग क्या करता है, अगर कहीं पे पानी
या विंड है उसकी हेल्प, वो अगर बहुत ज़्यादा ज़ोर से बहे तो वहाँ पे सॉइल इरोजन हो सकता है अगर लूज मिट्टी है तो। लेवलिंग क्या करता है, मिट्टी को थोड़ा इस टाइप से सेट कर देता है कि वो लूज ना हो और वो इजीली वॉश ऑफ या ब्लो ऑफ ना हो। द थर्ड पॉइंट इज दैट लेवलिंग ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी, फील्ड को वो यूनिफॉर्म कर देता है, सारे पार्ट्स में मैन्योर्स, फर्टिलाइजर, वाटर सब कुछ और अच्छे से जा सकता है एंड प्लांट्स और अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, जब हम ये सॉइल की बात करें, हम दो टेक्निक्स करें, प्लाउइंग एंड लेवलिंग, तो क्या क्या चीज़ें हमें यूज़ हो सकती हैं यहाँ पे, दे आर प्लाउ, हो एंड कल्टिवेटर। सो दीज आर बेसिकली द इक्विपमेंट्स जो हम यूज़ करते हैं ताकि हमारे जो सीड्स हैं उन्हें हम वहाँ पे लगाने के लिए पहले उस जगह को प्रिपेयर कर रहे हैं, वी आर प्रेपिंग द एरिया फॉर आर नेक्स्ट स्टेप। तो इन स्टेप में हमें ये 3 चीज़ें ज़रूरी होंगी। यहाँ पे आपको इन टूल्स के बारे में दिया हुआ है, you will be reading about all these tools and then we will be discussing all of the video that I have discussed, we will be discussing it in our Zoom class. The second one is selection and sowing of seeds. ये वाला पॉइंट वो है जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। Up to now you will read the chapter portion which I have told you, which I have explained to you, and we will discuss this with all the students in our Zoom class and I'll send you questions accordingly. Thank you.